بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ बहुत ही नायाब अमल है। सबसे पहले अमल की इबारत आप सुन लें। अलम नशरा, दो तगा, दो धारी, हबीबे गफ्फारी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की सवारी, या जिब्राइल, या मिकाइल, या इसराफील, या इसराइल, हाजिर शो, हाजिर शो, हाजिर शो। अब अमल का तरीका आप सुन लें। ये अमल का तरीका या अज़ाइमत पहले भी बयान किया जा चुका है, लेकिन उसमें और पढ़ाई है, इस तरीके में और तरह की पढ़ाई है। जो भी अज़ाइमत अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, 9 चंदी जुमेरात को अरूज माह में रोजाना 1000 मरतबा आपने सिर्फ और सिर्फ 30 योम तक पढ़ना है। 1000 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 21-21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ेंगे। परहेज जलाली और जमाली करेंगे। मुंह खाना काबा की तरफ करेंगे। रिजाले गैब का ख्याल दिल में ना रखते हुए मुंह खाना काबा की तरफ करें। रिजाले गैब की दुआ पढ़कर सलाम करके अमल शुरू करें। ठीक है। और बाद नमाज इशा आपने अमल शुरू करना है। अगरबत्ती सुलगा लेनी है, खुशबू खुद को लगा लेनी है। अमल को विद में रखने के लिए 41 मरतबा आप रोजाना पढ़ेंगे। आप जब भी मुकल्लिन की हाजिरी की जरूरत पेश आए तो आपने क्या करना है, आपने मगरिब की अजान से पहले आपने बैठ जाना है और अपने हाथ पर हाजराती जादुई काजल लगाकर गोल दायरा बनाकर हाजराती स्याही लगानी है, उसमें अतर लगाना है ताकि खुशबू और चमक पैदा हो सके। और उसके बाद दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा आप पढ़ेंगे। और जो मैंने ऊपर अज़ाइमत बताई है जिसकी आपने ज़ुकात अदा की है, 28 मरतबा पढ़कर दम करें। और बच्चे को अगर आपने करना है यही अमल तो आपने बच्चे के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह अमल का तरीका इख्तियार करना है जो आपने खुद के लिए इख्तियार किया है। तो इंशाअल्लाह जैसे ही आप अपनी हथेली के ऊपर फूंक मारेंगे तो फौरन ही आपके ऊपर हाजराते मुकल्लिन का नुज़ूल होगा और फौरन ही हिजाब के पर्दे हट जाएंगे। हर सवाल का जवाब दुरुस्त मिलेगा। इन हाजरात मुकल्लिन से आप क्या काम ले सकते हैं? नंबर 1, अशिया की चोरी या अशिया गुम हो जाए, चीजें गुम हो जाए, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। चोरी के बारे में पूछ सकते हैं। जिन्नात को कैसे काबू कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। परियों को कैसे काबू कर सकते हैं, इस अमल के बारे में पूछ सकते हैं। हाजराते मुकल्लिन जबरदस्त ताकत रखने वाले मुकल्लिन की कैसे हाजिरी की जा सकती है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और उससे घर और कारोबार की बंदिश को भी खत्म करवाया जा सकता है जो मैंने आपको इल्म बताया है। और काले इल्म की तमाम हाजिरियों पर बादशाह यानी कि काले इल्म की तमाम हाजिरियों पर बादशाही के लिए ये अमल बहुत नायाब है। यानी कि काले इल्म के ऊपर अपनी जो है महारत हासिल करने के लिए, काले इल्म को तोड़ने के लिए, काले इल्म के आमिल को सबक सिखाने के लिए इसके ऊपर बादशाही कर सकते हैं। ठीक है। अहले नजर के लिए यानी कि नजरों से गायब हो जाने के लिए इतने ही अल्फाज लिखना या आपको बताना काफी थे, क्योंकि ये एक ऐसा नायाब अमल है जो आज तक कभी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। हर काम, हर किस्म के काम आप इन मुकल्लिन से ले सकते हैं और जो भी आप पूछेंगे उसका 100% दुरुस्त जवाब देंगे। ये बहुत नायाब और बहुत ही बुलंद और बाला अमल है।
آپ اگر یہ عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک بھائی تھے، انہوں نے مجھ سے کمنٹس باکس میں کہا کہ آپ کی پرائز بونڈ کے نمبرز کا پتہ کرنا ہو تو یہ موکلین الحمدللہ اگر آپ اس طرح کا کوئی پوچھتے ہیں تو آپ کی خواہش کے مطابق وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ پہلے ان سے اجازت طلب کریں کہ اگر ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، اگر وہ کہیں نہیں تو پھر ان سے سوال کریں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔